Hello student, I am R.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I have brought a class for mathematics for the students of class 10th and the chapter is trigonometry and exercise is 8.5 of NCERT, 8.4 of NCERT. And in this exercise actually there are 5 questions. And in question number 5, there are 10 questions. And all those questions are identities. And in these 5 questions, up to question number 4, some questions of 4 are also based on the identities. And so, main question in this exercise is question number 5. Because when we will understood question number 5, then the concept will be clear and then we can solve all the remaining questions. So today I am going to discuss the question number 5. Actually, the name of this chapter can be said trigonometric identities. And in this trigonometric identities, there are some formulas that I have written. First is a square relation. A square relation means this formula, these 3 formula is applicable when these ratios are given in a square. So in a square relation, there are 3 identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. And 3, reciprocal relation. Because the reciprocal of sin is cosec, the reciprocal of cos is sec, and the reciprocal of tan is cot. So this can be understood. Cosec theta is equal to 1 by sin theta, and sin theta is equal to 1 by cosec theta. Sec is equal to 1 by cos, therefore cos must be 1 by sec. Cot is equal to 1 by tan, therefore tan must be 1 by cot. And from this it can be understood cosec into sin is equal to 1 and sec into cos is equal to also 1 and cot into tan is equal to 1. And after that, these 2 formulas, tan theta is equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta. So these 2 identities and these identities are also applicable when these ratios are given in a square also. But these 3 are applicable only when they are given in a square. One more thing in this chapter you have to remember. Actually, for sake of convenience, as the name suggests, identities. So any identity can be used. And in this chapter, we also need algebraic identities. For example, a plus b whole square, a minus b whole square, a cube plus b cube, a cube minus b cube, a plus b whole cube. Just I have discussed in previous classes. And when the exercise you have to, so first of all you keep remember the formula. Okay? And after remembering the formula, first of all, always you keep in your mind, when you are going to solve trigonometric identities, and suppose if any problem is not going to solve, then one thing you may do, if it is possibility to convert all the ratios in sin into cos, then 1 or 2 steps will increase. But there is a sure one thing you can say, the questions will be solved. मतलब इसको मैं हिंदी में ऐसे समझाते हैं कि आप जब इस चैप्टर को बनाओगे तो आप ये कोशिश करो कि अगर मान लो आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो और आपसे वो नहीं बन रहा है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि हम सारे टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने से 1-2 स्टेप प्लस माइनस आपका हो सकता है, बट क्वेश्चन बन जाते हैं. तो चलिए हम इन्हीं बातों को पहलू करते हुए आप पहले आप देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस बनाता हूं. मैंने अभी पहले से बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस लिख के रखा है, फिर बाकी क्वेश्चंस को मैं फिर आपके सामने इसको बनाऊंगा. तो देखिए 5वां का फर्स्ट क्वेश्चन दिया cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर. लेकिन इससे पहले, हालांकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, बट इससे पहले हमने क्या किया, इस cosec को और cot को सबको मैंने साइन और कॉस में चेंज कर लिया.
तो कॉसेक 1/sin होता है, इसलिए कॉसेक की जगह पर हमने 1/sin थीटा लिखा। और कॉट cos/sin होता है, तो इसके जगह पर मैंने cos/sin थीटा लिखा। और उसके बाद अब हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। sin थीटा आ गया और ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब जब कोई बच्चे यहां आते हैं तो इसको ये करने लगते हैं a² - b² - 2ab। तो आइडेंटिटी में, खासकर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आप बनाओगे तो जब स्क्वायर आएगा तो आप उसको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर नहीं कर देना है जल्दी में। आप उसको 2 बार लिख दो। जैसे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है तो मैंने इसको a² - 2ab + b² नहीं लिखा। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिखा जा सकता है। तो पहला काम क्या करना है कि आप उसको 2 टाइम लिखो। जैसे मैंने 1 - cos को 2 बार लिखा, 1 - cos थीटा × 1 - cos थीटा 2 बार लिखा। और साइन भी 2 बार होगी, यानी sin² थीटा। तो एक आइडेंटिटी होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अगर sin² थीटा + cos² थीटा = 1, देन sin² = 1 - cos² थीटा। इसलिए मैंने sin² की जगह पर 1 - cos² थीटा लिख दिया। अब ये 1 - cos² थीटा आ गया। अब ये 1 - cos² थीटा भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ रहा है, a² - b²। इसको भी हम a + b × a - b लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। 1 - cos और 1 + cos लिख दिए। अब ये लिखने के बाद देखिए, ये भी 1 - cos है, ये भी 1 - cos है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच गए? 1 - cos/1 + cos, जो कि RHS में दिए हुए हैं। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। तो मैंने आइडेंटिटी का भी यूज किया, बट उससे पहले मैंने इसको साइन कॉस में किया। और आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। cos a/1 + sin a + 1 + sin a/cos a। एक क्वेश्चन आता है कि जब हम cosec को 1/sin लिखते हैं तो फिर sin को भी 1/cosec तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है। आप कोशिश करोगे कि sin cos में लाना है, sin cos को एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक? क्योंकि sin और cos जो है फंडामेंटल है इसका ट्रिगोनोमेट्री का, इसीलिए इसको आप नहीं तोड़ोगे। तो ये पहले से ही sin और cos में दिया है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, इसका एलसीएम सीधा निकालना शुरू किया। 1 + sin a और cos a का एलसीएम 1 + sin a cos a हो गया। अब इसमें अगर हम 1 + sin a से डिवाइड किए तो cos आ गया। cos को cos से मल्टीप्लाई किए, cos² a आ गया। अब फिर इसको मैंने cos से डिवाइड किया, 1 + sin आ गया। 1 + sin को फिर हमने 1 + sin a से मल्टीप्लाई किया तो 1 + sin a का होल स्क्वायर आ गया। तो अब मेरे पास cos² a है और प्लस 1 + sin a का होल स्क्वायर है। तो 1 + sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन में है इसीलिए अब आप इसका स्क्वायर कर दो। और 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस sin² प्लस 2 × 1 × sin a, यानी 2 sin a आएगा। तो देखो लिखा हुआ है cos² a + 1 + sin² a प्लस 2 sin a। और sin² प्लस cos² 1 होता है, इसीलिए मैंने इस cos² और sin² को मैं जब लिखता हूं तो cos² प्लस sin² 1 अब प्लस 1, ये 2 हो गया। तो ओवरऑल ये सॉल्व होके 2 + 2 sin a आ जाता है। एक बात और याद रखना है कि जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के बाद आप इसको जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसको इनटू के फॉर्म में ही रहने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में करेंगे, ठीक है? अब ये 2 + 2 sin a बाई 1 + sin a/cos a है। अब न्यूमरेटर से 2 को अगर हम कॉमन ले लिए तो न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 1 + sin a। अब बाई नीचे में 1 + sin a/cos a था, तो ये 1 + sin a को कैंसिल कर दिए तो 2/cos a आ गया। अभी मैंने एक बात और कहा कि साइन कॉस को नहीं तोड़ना है। ये कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन के लिए हम देखते हैं, सुविधा होती है। क्योंकि इस क्वेश्चन में RHS में सेक दिया है, इसीलिए सेक में लाना है। तो 2/cos तो आ गया। तो एक और क्या हमको याद रखना है कि जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन में जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजते हैं
किसी भी टर्म को तो वो रेसिप्रोकल बनता है। जैसे नीचे में कॉस है और कॉस को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये अपना रेसिप्रोकल बन के जाएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया। क्योंकि ऐसे आप समझ सकते हो कि कॉस इज इक्वल टू 1/sec a, इसीलिए 2 इंटू सेक ए बाई 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 सेक आ जाता है। तो उतना हम कैलकुलेशन नहीं करके हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर नीचे जब कोई भी टर्म होता है तो वो अपना रेसिप्रोकल बन जाता है, इसलिए 2 सेक आ गया। क्लियर? तो आप पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ गए। अब मैं आपके सामने तीसरा चौथा क्वेश्चन फिर लिख के आपको समझाता हूं। और तीसरा क्वेश्चन दिया है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एलएचएस में क्या दिया? टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। आरएचएस में ये टर्म है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमें एलएचएस को सॉल्व करना है। तो ये हम इसको एलएचएस ये दिया हुआ है। अब देखिए ये एलएचएस में टेन और कॉट है, तो अभी क्या मैं बताया कि आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लो, इसलिए टेन के जगह पर टेन साइन बाई कॉस होता है और कॉट कॉस बाई साइन होता है, इसलिए टेन के जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लिए बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लिए प्लस फिर कॉट है, इसके जगह पर आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लिए। हो गया। अब फिर अगले स्टेप में क्या करना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं बाई इसके एलसीएम साइन हो गए और ये लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दी प्लस फिर इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया। अब ये जब आ गया इसके बाद एक चीज, इसको चूंकि ये ए बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में आ गया, तो ए बाई बी बाई सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी। इसीलिए इसको कैसे लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन माइनस कॉस थीटा। तो इसको लिखते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लिख दी। फिर प्लस कॉस बाय साइन, इसको फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दी। अब ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा आ गया बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अभी लिखने के बाद आप यहां देखिए, यहां साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है, तो टर्म तो सेम है। यहां ए माइनस बी है, यहां बी माइनस ए है। अगर हम b माइनस ए में से -1 कॉमन ले लेंगे तो वो भी a माइनस बी हो जाएगा। अगर हम cos माइनस साइन से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस माइनस बन गया। इसको हम फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और इसको कॉस माइनस साइन नहीं, अब इसको हम साइन माइनस कॉस लिखेंगे तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब ये लिखने के बाद फिर इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन माइनस कॉस तो सेम टर्म है, और यहाँ कॉस इंटू साइन है, तो इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जब आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस साइन माइनस कॉस से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, और साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहां तक आ गए। अब ये स्टेप करने के बाद फिर हम यहां आते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटी बना रहे हो तो नाम ही है इसका आइडेंटिटी, तो उस समय में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आएंगे। जैसे यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसलिए साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस। तो इसको हम लिखेंगे अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन माइनस कॉस कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू, इसको आप फिर क्या लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई क्या बच रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब एक स्टेप और है, एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप सॉल्व करके आओगे तो अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल है और न्यूमरेटर अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है तो आप उसको सेपरेट कर दीजिए। जैसे यहां भी न्यूमरेटर बाइनोमियल में है, डिनोमिनेटर मोनोमियल में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस साइन प्लस साइन कॉस बाय साइन कॉस। तो हम जब इसको लिखेंगे अब 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस, अभी मैं बताया था कि जब ऊपर नीचे करेंगे, नीचे से ऊपर भेजेंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे किसी भी मोनोमियल टर्म को, तो उसमें वो रेसिप्रोकल बन जाता है। तो नीचे में कॉस इंटू साइन है, इसी को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो कॉस और साइन रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का कॉस सेक, इसलिए बन जाएगा सेक इंटू कॉस सेक। तो इसको लिखा जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, और इस तरह से आपके आरएचएस मिल जाते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं फिर अगला। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां का चौथा क्वेश्चन दिया है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अभी जो जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम क्या देखे कि एलएचएस को सॉल्व किए, आरएचएस आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेकिन स्टार्ट करना है आपको एलएचएस से, जब आप एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आरएचएस आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो मेरा आरएचएस डायरेक्ट नहीं मैच करता है, तो वहां भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको देखिए। तो काम क्या करना है कि पहले तो हमें एलएचएस ही बनाना है, तो इसको हम, और एक चीज और मैंने कहा कि अगर कहीं भी अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल है, न्यूमरेटर बाइनोमियल है, तो उसको सेपरेट कर देना है। तो आप देखिए इसके न्यूमरेटर में बाइनोमियल है, डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, इसलिए इसको हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के बाद ये एलएचएस में क्या मिलेगा 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब ये 1 बाय सेक ए कॉस से प्लस ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये कॉस से प्लस 1, दैट इज इसको हम 1 प्लस कॉस ए बोल सकते हैं। तो मैंने जब इसको एलएचएस को सॉल्व किया तो ये आरएचएस के बराबर इससे मैच नहीं किया। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब ऐसा होगा तो आप इसको भी हम ला सकते हैं। 2 तरीका है लाने के लिए कि अगर ये 1 प्लस को, लेकिन आपको मैं इजी मेथड बता रहा हूं कि अब इसको छोड़ दो, एलएचएस छोड़ दिए। अब हम आरएचएस पर आते हैं। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हम साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको देखिए मैं आरएचएस को सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस
कॉस ए, ये लिख दिए। अब ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। दैट इज 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए कट गया तो ये क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो अब आप देखो ये LHS क्या है आपके पास 1 प्लस कॉस ए, RHS क्या है 1 प्लस कॉस ए। इस तरह से दोनों मिल गए, इट मीन LHS RHS दोनों सॉल्व हो गए। क्लियर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे मैं जब स्टार्ट किया अभी आपको कुछ बताना तो उसमें मैं एक चीज बताया कि साइन कॉस को नहीं तोड़ना है, ठीक। लेकिन अभी हम तोड़ेंगे तो आपके मन में आएगा कि भाई बताया जाता है कि साइन, या बताया गया कि चलो साइन कॉस को नहीं तोड़ना है और यहां तोड़ा जा रहा है। तो मैं क्या कहा था कि कोई रूल नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब कॉस और साइन या कोई भी 3 टर्म होगा जहां न्यूमरेटर में भी देखिए साइन कॉस 1 या सेक कॉसेक 1 टेन कॉट 1 इस तरह से कोई 3 ट्राइनोमियल होगा, ऊपर नीचे का टर्म सेम होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो आपका काम क्या है कि उस क्वेश्चन में साइन कॉस को चेंज करना है, ठीक है। अब साइन कॉस को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। तो उस क्वेश्चन में या तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं, कॉस से भी डिवाइड कर सकते हैं। बट यहां एक समस्या आती है कि हम ये कैसे समझेंगे कि यहां पर हमें साइन से डिवाइड करना है या कॉस से करना है। ये बड़ी बात है कि हम ये कैसे समझेंगे कि साइन से डिवाइड करना है या कॉस से डिवाइड करना है। तो आप थोड़ा सा नजर रखो RHS पर। RHS में क्या दिया है कॉसेक ए, पूरा को नहीं चेक करना, आप एक टर्म को चेक कर लो। कॉसेक ए और कॉसेक ए 1 बाय साइन ए होता है, या उसको चेक करो कॉस बाय साइन होता है। तो दोनों के टर्म में उसके डिनोमिनेटर में साइन आ गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में RHS में पहले से साइन कॉस है तब तो डिफाइन रहेगा कि साइन से करना है या कॉस से है। जिसमें साइन कॉस नहीं है वहां हम उसको भरवली भी देख सकते हैं कि क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में। यहाँ 1 बाय साइन आ रहा है, वहां कॉस बाय साइन आ रहा है, मीन्स इसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, सॉरी साइन आ रहा है। इसीलिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे। क्लियर। ये कैसे समझेंगे कि साइन से डिवाइड करना है या कॉस से करना है। तो चलते हैं, तो अब हम लिखेंगे LHS। तो चलिए क्वेश्चन से लिखा हुआ है LHS। अब LHS का हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन से डिवाइड करेंगे। साइन से क्यों समझ में आ गया, अगर यहां रहता सपोज कीजिए कि सेक रहता और यहाँ 10 रहता, मान लीजिए, मान ले रहा हूं मैं कि अगर यहाँ सेक होता तो 1 बाय कॉस होता, तो उस केस में मैं कॉस से डिवाइड करता। बट अभी कॉसेक है जो कि 1 बाय साइन नहीं होता, इसलिए मैं साइन से डिवाइड करूंगा। तो इसको अब लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। इसको लिख दिए, इसको लिखिए कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। न्यूमरेटर को डिवाइड किए, फिर बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। या तो कॉस बाय साइन कॉट होता है, इसके जगह पर कॉट लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो कॉट माइनस 1 प्लस कॉसेक, क्योंकि 1 बाय साइन कॉसेक होता है, यहां साइन को तोड़ना है, इसको लिखा गया कॉस ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 लिख दिया। अब नीचे में क्या लिखना, नीचे में भी वही है कॉस बाय साइन, यानी कॉट ए प्लस 1, ये भी कैंसिल होगा, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो आपके एक्सप्रेशन कॉट कॉसेक या सेक या टेन में होना चाहिए, तो यहाँ कॉट कॉसेक में आ गया। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि अब क्या फर्क पड़ेगा, फिर सेम आ गया, क्योंकि साइन कॉस है, यहाँ कॉट कॉसेक है। तो जब इस तरह से आप लाओगे तो ध्यान क्या रखना है, इसके डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में भी 1 के जगह को
रिमूव करना 1 को, और 1 को एलिमिनेट करने के लिए हम 1 का आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। और कॉसेक और कॉट के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है, 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको आप लिखो, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय नीचे का ऐसे ही रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये आ गया। अब ये फिर आ गया एक आइडेंटिटी के फॉर्म में, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखते हैं अब हम फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही हमने लिखा। मैं थोड़ा टाइम के चलते मैं इसको डबल कॉमा दे दिया, फिर अगले स्टेप में लिखता हूं। अब ये लिखने के बाद ये ध्यान दो कि कॉट प्लस कॉसेक क्या है, कॉमन है। तो आप इस कॉमन को ले लिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिए, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस, अब क्योंकि इसको आपने कॉमन लिया, यहां माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप इसको देखिए, 1 प्लस है, कॉट ए प्लस है, कॉसेक माइनस, यानी ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस तरह से इसके आरएचएस मिल जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। और ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन में आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जो है क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखिए फिर अंडर रूट आ गया। तो अब आप कहेंगे अंडर रूट में भी आइडेंटिटी होते हैं, लेकिन अंडर रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं उसी से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आप इसमें क्या करो कि उसका जो न्यूमरेटर है उसी के न्यूमरेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम आपका बहुत हल्का होगा। देखिए जैसे एलएचएस क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए दिया है। इसका न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए है, तो हम इसके अंडर रूट में ही 1 प्लस साइन ए को और 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, तो आप 2 बार लिखो। तो इसको लिखेंगे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में एक आइडेंटिटी बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसीलिए इसको लिखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए भी स्क्वायर में है और कॉस भी स्क्वायर में, और ये अंडर रूट है, इसलिए इसके रूट को आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। और अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर अगर मोनोमियल है और अगर न्यूमरेटर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है तो आप उसको सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर के साथ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और 1 बाय, अब आरएचएस पर नजर रखना है, आरएचएस सेक ए है, तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए। इसकी जगह पर आ गया ये सेक ए, यहाँ 10 है तो साइन ए बाय कॉस क्या होता है 10 ए। तो इस तरह से सेक ए प्लस 10 ए, ये आपके आरएचएस मिल गए। क्लियर।
तो क्या रखना है कि रूट में जो के न्यूमरेटर होंगे उसी के साथ उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर बनेंगे, पहले रूट निकाल लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 में देखिए क्या है, ये देखने से बड़ा भारी भरकम लगता है, बट इसमें देखिए कि न्यूमरेटर में साइन कॉमन है, डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लो, एलएचएस से मैं लिख रहा हूं, तो न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन लिए तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे से कॉस कॉमन होगा, इसको हमने लिखा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आरएचएस में टेन थीटा दिया है और यहाँ साइन बाय कॉस है, तो साइन बाय कॉस तो 10 आता है, तो ये आपको आ चुका है, यही 10 होता है। अब बच गया ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, लेकिन अभी आप कहोगे कि यहाँ 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम पहले सेम बनाते हैं। इस साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह पर आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए, तो दिस इज टेन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 × 1 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो आप देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इस तरह से ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, टेन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये आपके आरएचएस मिल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, ये भी a + b का होल स्क्वायर है एलएचएस में, तो पहले हम आइडेंटिटी यूज कर देते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक, आगे प्लस, अब फिर इसको भी लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब सबसे पहले ये साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद 1 × 2 दैट इज 2 बच गया सिर्फ। और ये कॉस और सेक भी क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए 1 हो गया, 1 × 2 2 बचेगा। इस दोनों को मैंने 2 + 2 यहां लिख दिया, प्लस अब ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो +1 आ गया। अब सिर्फ क्या बचा हुआ, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको भी अब आप लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अब ये 2 + 2 + 1 दिस इज 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आगे अब 5 प्लस, अब देखिए आरएचएस में आप 10 और कॉट है, इसीलिए हम कॉसेक ए को भी स्प्लिट करेंगे, और हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर की जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए सेक स्क्वायर की जगह पर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 + 1 + 1 कितने हो गए, 5 + 1 + 1 6 + 1 दैट इज 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये क्या आरएचएस मिल गया। तो इस क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसमें सिंपल सा याद रखना है कि a + b को तोड़ देंगे, 7 में से 5 तो एक ही स्टेप में आ जाते हैं, फिर बच जाते हैं 2 लाना, तो फिर हम कॉसेक स्क्वायर को स्प्लिट कर देते हैं और सेक स्क्वायर को स्प्लिट कर देते हैं 10 कॉट में, तो फिर वहां से मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं बताया, आप क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो 9 में क्वेश्चन दिया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना है।
तो यहाँ कॉसेक दिया है और यहाँ सेक दिया है, साइन कॉस को नहीं तोड़िए, कॉसेक को आप 1/sin लिख दो, सेक को 1/cos लिख दो। तो चलिए देखते हैं, हम कॉसेक की जगह पर 1/sin A माइनस sin A, फिर सेक के जगह पर कॉस लिखते हैं तो 1/cos A माइनस cos A लिख दिए इसको। इसका एलसीएम sin A 1 माइनस sin स्क्वायर A, इसका एलसीएम cos A और ये 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A दैट इज cos स्क्वायर A बाय sin A इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A बाय cos A। ऊपर में 2 cos है, नीचे में 1 cos है, तो 1 cos कैंसिल हो गया। या ऊपर में 2 sin है, नीचे में 1 sin है, तो 1 sin कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास cos A इंटू sin A। अब अगर हम RHS पर नजर डालते हैं तो RHS में ये नहीं दिया है। तो मैं क्या भी बताया था कुछ देर पहले कि जब आप LHS को सॉल्व करते हो, सपोज RHS नहीं मिला, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो उस सिचुएशन में आप RHS को सेपरेटली सॉल्व कर दो, नहीं मिला कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करते हैं और यहाँ LHS में आपको cos sin आया है, इसीलिए यहाँ जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसको भी हम sin cos में चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा 1/10 की जगह पर sin A बाय cos A प्लस cos A बाय sin A 1 इसका एलसीएम cos A sin A और ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। इस cos sin को हम फिर ऊपर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा cos A sin A, अब sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है, इसीलिए 1। तो अब देखिए आप LHS और ये RHS दोनों क्या मिल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ 10, और 10 जब हम बताएंगे तो इसमें कि सबसे बड़ा बात क्या होता है कि एनसीईआरटी में क्या आप दिक्कत को कम में क्वेश्चन था, इतना बनाने के बाद रेफरेंस बुक में इतने सारे क्वेश्चन हैं। बट अगर इस सारे क्वेश्चन की बातों को अगर हम बारीकी से समझते हैं और रेफरेंस में प्रैक्टिस के लिए आपके पास दिए, तो कंसेप्ट यही है, यही काम आपको करना है और आप ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो अब एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अब उसको देखते हैं। अब ये फिर यूनिक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें एक नया चीज आया, क्या, इसमें 3 टर्म दे दिए। आप कहोगे 3 टर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले 2 टर्म था, LHS RHS, LHS को सॉल्व किए तो RHS आ गया। अभी 3 टर्म है, LHS है, मिडिल टर्म है, RHS है। LHS को सॉल्व कीजिए, RHS आएगा, फिर आप मिडिल टर्म को सॉल्व कीजिए, RHS आएगा। इट मीन सारे तीनों टर्म क्या आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूं इसको। तो सबसे पहले देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर का डायरेक्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर का डायरेक्ट आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर ए। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं, पहले इस टर्म को मैं लिख रहा हूं कि 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए बाय cosec स्क्वायर ए। और cosec को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल बन के जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर ए होगा। और sec को जब हम नीचे लाएंगे तो cos स्क्वायर ए होगा। तो ये इसको लिखते हैं हम sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। और sin बाय cos 10 होता है, बट इसमें स्क्वायर लगे हैं, इसीलिए क्या ये 10 स्क्वायर ए आ गया। आप नजर डालिए RHS पर, ये आ गया ना। इस तरह से हमने जब LHS को सॉल्व किया तो ये RHS के बराबर आ गया। अब बच गया मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना आएगा, 10 स्क्वायर ए आएगा। कैसे, तो देखिए अब इसमें 1 - 10 को आप साइन बाय कॉस बना दो, फिर बाय 1 - cot को भी हम cos से बाय साइन बना देते हैं का होल स्क्वायर। और ये इसका एलसीएम cos ए होगा, और ये cos ए माइनस साइन ए बाय इसका एलसीएम साइन होगा, और ये लिखेंगे हम साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ये a/b/c/d के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, cos ए माइनस साइन ए बाय cos ए इंटू साइन ए बाय साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब फिर यहां देखिए, यहाँ cos माइनस साइन है, मतलब a माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ साइन माइनस cos है, मतलब b माइनस a के फॉर्म में है। अगर a माइनस बी है, b माइनस a है, तो b माइनस a में से आप माइनस कॉमन लोगे तो फिर वो a माइनस b बन जाएगा। यानी ये cos a माइनस
साइन ए इंटू साइन ए बाय कॉस ए इंटू -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये कॉस से और ये कॉस माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब -1 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस होगा, और इस तरह से लिखा जाएगा ये साइन ए बाय माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस का भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस 10 होता है, इसलिए ये 10 स्क्वायर ए। इस तरह से एलएचएस को सॉल्व किया तो आरएचएस आ गया। हमने मिडिल टर्म को सॉल्व किया तो भी आरएचएस आ गया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें 3-4 टर्म दिया हो तो सारे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो सारे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप अगर इसको सबसे पहले आइडेंटिटी को याद कर लेना, फॉर्मूला, फिर साइन कॉस की जो बात मैंने कही थी उसको आप देखोगे, फिर क्वेश्चंस बनाओगे तो फिर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और इतने अगर सारे आप ऑनेस्टली अगर बना लोगे तो फिर रेफरेंस के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 10 टाइप के जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं आइडेंटिटी में, वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसीलिए आप इसकी बारीकी को समझेंगे और फिर आप इसको बनाएंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। थैंक यू।